Hare Krishna. Good evening, everyone. Uh, let's welcome His Grace Jagdish Syam Prabhuji here. Prabhuji has completed his Master of Computer Applications from Maharishi Dayanand University, Rohtak, and he is having more than 10 years of experience in many multinational companies. And later on, uh, while while working as a senior software engineer, he left his job, and thereafter he was working in ISKCON Patna as a general manager, and from 14 to 16, and from 16 to till date he is holding the leading position in ISKCON Gaya as a president, and he was taking care of the youth activities in Aurangabad, Jehanabad, Nawada, Begusarai, and he has also in the many managerial position in the ISKCON, and he has also completed many courses, and like Bhakti Sastri TTC, and currently he's completing one course in GBC College, and he's also preaching in various NITs, and for example NIT Patna, and sometimes he's also coming to the Gaya engineering colleges, and he's also giving his uh, benign presence in government engineering college Nawada now. So now he will present uh, a topic related to discover yourself, and it is basically for the youths, and many things coming in the minds of the youth, and they are not getting their answers anywhere else. So this is one step towards the positivity. So let's welcome Jagdish Syam Prabhu by saying Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, please uh, give your wisdom thoughts here. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Lakshmi Singh Prabhu. So Lakshmi Singh Prabhu is currently uh, serving as a faculty member in Nawada Engineering College, and he invited me to give a seminar there. So thank you so much. And in continuation of that seminar, Healthy Habits for Happy Life. So we are going to organize this 7-day session. So thank you so much, Lakshmi Narasimhan Prabhu. And I also welcome all the participants coming from for this wonderful course. So we'll discuss from today onwards till 7 days. We'll discuss about so many topics. So first of all, let's I'm paying my obeisances to my spiritual master. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatayane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो सेमिनार जो है जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में है, एंड समटाइम्स आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स बिकॉज कुछ मैक्सिमम हिंदी समझने वाले हैं और कुछ कुछ जो है वो इंग्लिश समझने वाले हैं। तो इज इट ओके? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली विल बी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो सो मनुष्य सब कुछ आज कंट्रोल करने लगा है।
बड़े बड़े सैटेलाइट्स, बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े जो है अ, आप कह सकते हैं कि ट्रेन है, फ्लाइट है, मतलब बहुत कुछ कंट्रोल करने लगा है। लेकिन देखा जाए तो एक चीज में मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो क्या चीज है? ही इज फेल टू कंट्रोल हिज माइंड। डू यू एग्री और नॉट? आप एग्री करते हैं कि मनुष्य जो है आज अपने मन को नियंत्रित करने में असफल रहा है? क्यों? क्योंकि आज के जो जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में जो वो एम्फासिस नहीं दिया जा रहा है, किसके ऊपर? ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप्स, इसके ऊपर जो हमारा जो करंट एजुकेशन है उसमें एम्फासिस नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण आज देखा जा रहा है, हाँ, जो लोग जो है दे आर कमिटिंग सुइसाइड, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रहा है। है कि नहीं? तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है अ, हमारा जो एजुकेशन है उसमें ये ह्यूमन वैल्यूज, कैरेक्टर, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, इसके ऊपर एम्फासिस नहीं दे रहे। तो बेसिकली यू मस्ट हैव नोन कि देयर आर 4 Qs। है कि नहीं? 4 Qs कहते हैं। वन इज फिजिकल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट। आप सब इसको अपने जो मोबाइल पे या कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्विज भी करेंगे, और जो भी है ना सक्सेसफुल होगा तो उसको हम प्रॉपर ग्रेड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। तो मैंने कहा 4 Qs है। एक है फिजिकल क्वोशंट। फिजिकल क्वोशंट में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने बॉडी को फिट रखना चाहता है। वो प्रॉपर डाइट लेता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है ना? तो इसी प्रकार वो अपने बॉडी को फिट रखना चाहता है। और वैसे देखा जाए, इवन एनिमल भी वो अपने बॉडी को फिट रखते हैं। सेकेंड वन इज इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट क्वोशंट मतलब लाइक क्राफ्ट्समैन टाइप, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना? और सब कुछ को इंटेलिजेंटली डील करते हैं, इंटेलिजेंटली प्लानिंग करते हैं। है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट क्वोशंट। लेकिन जो थर्ड वन एंड फोर्थ वन है, वो क्या है? थर्ड वन इज इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट मतलब कैसे हम जो है हम एक दूसरे का इमोशन को कैसे सुने, है कि नहीं? और उसको कैसे हम उसके साथ साथ दे, है कि नहीं? और उसको हम कैसे डील करें। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल क्वोशंट। एंड लास्ट वन इज स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट मीन्स कि अ, जो है भगवान के बारे में जानना, ये प्रकृति के बारे में जानना, है ना? देवताओं के बारे में जानना, हमारे बारे में, अपने खुद के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो देखिए, फिजिकल क्वोशंट और इंटेलिजेंट क्वोशंट, ये दोनों तो हम जो है अपने एकेडमिक कॉलेजेस एंड जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, है ना? बट जो इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता। जिसके कारण जो है अ, जैसे मैं कह रहा था कि कई सारे जो है जो प्रॉब्लम आज हो रहा है, समाज में कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है ना? कई सारे लोग जो है इतना लोनली फील कर रहे हैं आजकल, सब कुछ होते हुए भी हैं। जैसे मैंने एक सुना था, एक शायद 1-2 महीना पहले, एक बहुत बड़ा पंजाब का एक पंजाब की सेलिब्रिटी थी,
वो मतलब उस मतलब उसके यूट्यूब में शायद कई लाख, शायद 4.5 लाख या 5 लाख ऐसे सब्सक्राइबर थे। और उसका ना मर्डर हो गया। और जब मर्डर हो गया तो उसको जो लेकर गए, जो उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए, उसमें 4 लोग भी नहीं थे। सब्सक्राइबर कितने थे? 4.5 लाख। हम्म। तो लोग जो है ना, मतलब एक इल्यूजन में है कि हमारे देखो कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके साथ साथ रहने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए लोग आज इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग जो है बहुत लोनली फील कर रहे हैं, है ना। तो इसे क्यों हो रहा है? कि इसलिए है कि देर इज नो सच एडुकेशन ऑफ इमोशनल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट। आप एग्री करते हैं मेरे साथ? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। सो नाउ आई शो यू। सो टुडे विल डिस्कस कि खोज जीवन के संघर्ष की। तो हम देखते हैं कि हर कोई क्या ढूंढ रहा है। हर कोई जो है क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है ना। तो सुख ढूंढने का जो तरीका है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, उसको एक बलून दे दीजिए या कोई टॉय दे दीजिए, ही इज हैप्पी। और थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या चाहिए? हाँ, साइकिल दे दीजिए। और थोड़ा बड़ा होता है तो ना, फुटबॉल, है कि नहीं। और बड़ा होता है तो ऑपोजिट सेक्स। फिर और बड़ा होता है तो मनी। फिर और बड़ा होता है तो, है ना, उसको, है ना, बच्चे वगैरह चाहिए, है ना। उसी प्रकार कोई फैशन में, कोई, है ना, जो बहुत एडवेंचरस एक्टिविटीज में, कोई स्पोर्ट्स में, और कोई जो है नशा और पार्टियों में, है ना। और कोई कोई जो है बेहतर सुविधाएं, मतलब फैसिलिटीज में, है ना, अच्छा फैसिलिटीज मिल रहा है, मतलब अच्छे से अ, भोजन कर रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, हम्म, या मेटिंग एंड देन डिफेंडिंग, है ना। तो 4 चीज क्या हो गया? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो इसमें अच्छा फैसिलिटीज अगर मिलता है, सो दे बिकम हैप्पी, है ना। सो नाउ हम देखेंगे कि इसी प्रकार अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स, दे हैव आल्सो देयर फैमिली, है कि नहीं। वो लोग भी एंटरटेनमेंट करते हैं, उनका भी फैमिली होता है ना। वो लोग भी भोजन करते हैं, वो लोग भी सोने जाते हैं, उनका भी वो वंश विस्तार करते हैं, और वो भी अपने आप को रक्षा करते हैं, है ना। ये जो 4 एक्टिविटीज है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये 4 चीज जो पशु भी कर रहा है और मनुष्य भी कर रहा है। खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना इंसानों और जानवरों दोनों में समान है कि नहीं। सो तो फिर क्वेश्चन अराइजेस कि मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल देन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल देन? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई अगर आंसर करना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस, सुषमा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम्म, आ, जो हम लोग को जानवरों से अलग करती है वो है चेतना। भगवान के प्रति हमारे मन में जो चेतना आती है वो हमें डिफरेंस करता है। ओके ओके। सो बेसिकली चेतना तो देखो, चेतना तो उसमें भी है, पशुओं में भी चेतना है कि नहीं? ओके, हम निशा से लेंगे, चतरा से निशा बोलेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मनुष्य और जानवर में एक ही अंतर है कि जानवर भक्ति नहीं कर सकता, पर मनुष्य के पास ये चेतना होती है कि भगवान से हमारी एक कनेक्शन है, जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है और हमें भगवान की ओर भक्ति करने को प्रेरित करती है। ओके, थैंक यू। सो तो वंडरफुल आंसर कि जो मनुष्य और पशुओं में यही अंतर है महाभारत के अनुसार, जैसे आई एम शेयरिंग। तो हम देखेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। अगर आ, कोई कहेगा कि हमारे पास जो है टेक्निक हम्म, है ना, तो देखा जाए तो खाने सोने संभोग और बचाव में जानवरों के पास तर्क संगत शक्ति और बुद्धि होती है। जानवर इंसान से भी अच्छे हैं। अगर देखा जाए, अगर खाने का लिया जाए तो हाथी जो है एक बार में 2.5 कुंटल खाना खा जाएगा, है कि नहीं? और है ना, उसी प्रकार है, सोने का हो तो एक भालू है, जो ये वहां पे क्या बोलते हैं, वो कोल्ड कंट्री में होता है, वो 6 महीने तक सो जाता है कि नहीं? तो देखा जाए तो ये जो आहार निद्रा भय और मैथुन, इसमें तो पशु भी कई बार जो है हमसे बेहतर है कि नहीं? तो कोई कह सकता है कि हमारे पास टेक्निक है, जानवर के पास टेक्निक नहीं है ना? तो ये टेक्निक होने के बावजूद भी हम देखते हैं क्या है कि मनुष्य जो है क्या है, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, है ना, हमेशा चिंता से भरा हुआ है, एंजाइटी, उदास रहता है कि नहीं? और दुखी रहता है। जबकि तकनीकी उन्नति मनुष्य को खाने सोने संभोग रक्षा के लिए बेहतर विलासिता का आनंद लेने में मदद करती है, किंतु हृदय के सच्चे आंतरिक आनंद के बिना मनुष्य क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। सो और पशुओं में अगर देखा जाए तो पशुओं में आप देखेंगे कोई कोई दंगा नहीं है ना? जैसे अभी जो है, आप जानते होंगे, नेपाल में दंगा हुआ, है कि नहीं? बट पशुओं में ऐसा कोई दंगा नहीं होता है। पशुओं में कोई सुसाइड नहीं करता है। पशु जो है, अ, पशुओं में कोई वो डिवोर्स भी नहीं होता है, या पशु जो है ना, नशा भी नहीं करते, है कि नहीं? तो ऐसा क्या है मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बना सकता है? तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, महाभारत में है। आप सब वहीं पे ही जो है अ, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अभी तो आप म्यूटेड है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम इमेतत् पशुभिर्नराणम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो क्या कह रहे हैं कि खाने सोने संभोग करने और रक्षा करने की गतिविधियां जानवरों और मनुष्य में तो आम है। ये दोनों, ये ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग एंड डिफेंडिंग, ये जानवरों में भी है और मनुष्य में भी है। बट क्या डिफरेंस करता है, डिफरेंशिएट करता है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य को तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वे उच्च आयामी विज्ञान के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें ईश्वर, उनके रचना, उनके नियमों और जीवन में सच्ची आंतरिक पूर्ति के रहस्य के बारे में
ज्ञान शामिल है, अन्यथा उन्हें जानवरों की तरह ही माना जाता है ना। इंक्वायरी है, हाई लेवल इंक्वायरी है ना, मतलब जो इंक्वायरी किसके मतलब ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग के ऊपर जो इंक्वायरी है। केवल खाना सोना संभोग करना और डरना के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं पशु, लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? उच्च सिद्धांत, जीवन मृत्यु और उससे परे के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, जीवन में सही चुनाव कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। अंडरस्टूड? यहां तक आप समझ पा रहे हैं? यस और नो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्विक। ओके, सो नाउ क्या क्या क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वेद में लिखा हुआ है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब व्यक्ति जो है, मनुष्य जब ब्रह्म का जिज्ञासा करता है तब जाके उसको मनुष्य कहा जाता है। क्या क्या है? मैं कौन हूँ? क्या भगवान मौजूद है? हम्म? सफलता का रहस्य क्या है? सच्चा मार्गदर्शक कैसे हम ढूंढ सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है क्या? सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? क्या हमें जीवन में जो चाहिए वो मिल सकता है? अनंत सुख कैसे प्राप्त करें? हम्म? असंभव को संभव कैसे बनाया जाए? हम भाग्य बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है? अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती है? और भी और बहुत कुछ। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जो इंक्वायरी है, इसी को बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इस कोर्स में मिलता जाएगा, है कि नहीं? तो बेसिकली इसको कहते हैं कि खोज आत्म तत्व की। हम्म, एक शाश्वत सत्य जो आपकी दृष्टि बदल सकता है। तो जैसे एक एक चालक कार चलाता है, आत्मा एक जीवित शरीर को चलाती है। वैज्ञानिक शोधों ने इसे साबित कर दिया है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, तो उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एक ड्राइवर चाहिए, जो ड्राइवर को क्या बोलते हैं? आत्मा। तो पदार्थ जड़ है जबकि आत्मा चेतन है। इस प्रकार आत्मा जो है वो क्या है? पदार्थ से श्रेष्ठ है कि नहीं? पदार्थ आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध का ज्ञान इस दुनिया में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तीन चीजें क्या है बताया गया? मैटर, स्पिरिट एंड सुप्रीम लॉर्ड। मैटर, स्पिरिट एंड सुप्रीम लॉर्ड, है ना? ये तीनों के बीच में जब रिलेशनशिप जो है हम जान जाएंगे, तब जो है सभी ना एक समाज में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ठीक है नहीं? तो कोई क्वेश्चन कर सकता है आप में से, कोई क्वेश्चन कर सकता है क्या फायदा होगा मुझे आत्मा के बारे में जानने के, है ना? है कि नहीं? क्या फायदा होगा? हम्म? है ना? तो क्या फायदा होगा? तो हम देखेंगे कि क्या हुआ जब महाभारत में जब अर्जुन गए थे युद्ध करने के लिए, और अर्जुन गए थे युद्ध करने के लिए, और उन्होंने जब अपने रिश्तेदार बंधुओं को देखा, तो देखा तो क्या हुआ? वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्यक्ते च परिदर्ह्यते। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिर पर खड़े हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है कह रहे हैं ना। और फिर क्या कह रहे हैं? नचो शक्नो में अवस्था तुम भ्रमति वे च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, मैं खुद को भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं केवल दुर्भाग्य के कारण देख रहा हूँ हे कृष्ण।
तो इस प्रकार अर्जुन जो है, हाँ, कि क्या स्थिति है अर्जुन की? आत्मविश्वास की कमी, हम्म, चिंता, है ना, हतोत्साहित, तनाव, अवसाद, ये सब जो है सिचुएशन था किनका? अर्जुन, है कि नहीं? लेकिन बाद में हम देखें अर्जुन विजयी हुए, है कि नहीं? अर्जुन विजयी हुए। कैसे विजयी हुए? क्योंकि उन्होंने आत्मा का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से सुना। आत्मा का ज्ञान मतलब भगवत गीता, वो भगवान भगवान से सुने, है ना? तो इसी प्रकार आज जो है हम कुछ चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं? दूसरा है, आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? तीसरा है, अ, जीवित व्यक्ति और रोबो के बीच में अंतर। और चौथा है, मन का तंत्र, है ना? तो ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सब मेरे साथ हैं? यस और नो? क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ सही में आप लोग मेरे साथ है कि और कोई काम कर रहे हैं। ओके। ओके। तो पहले हम देखेंगे, क्या हम जड़ पदार्थ है या हम आत्मा है ना? तो आप कौन है? डॉक्टर हैरी मॉन्सन एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। वो कहते हैं कि जो ये हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर तो अधिकांश भाग तो वाटर है। और एक 60 पाउंड व्यक्ति में लगभग क्या रहता है? 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, 9 ओंस पोटेशियम, 6 ओंस सल्फर और सोडियम है, और 1 ओंस मैग्नीशियम है, और कुछ आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है, और 1 ओंस से भी कम जो है मतलब आयोडीन जो है 1 ओंस से भी कम। तो ये सब केमिकल है हमारे शरीर में। तो अगर ये केमिकल है, तो ये जो केमिकल है अगर हम मार्केट से जो खरीदने जाएंगे, तो हमें 110 रुपए में ये केमिकल सब मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग ना? 110 रुपए में केमिकल्स, ये जितने भी केमिकल्स हैं हमारे शरीर में, वो सब मिल जाएंगे। तो अब क्या ये वो आपकी तरह लगता है? कृपया अपने आप से पूछे, क्या ये आपकी पहचान का आवश्यक सामग्री है कि आप जो है, आपका वैल्यू जो है 110 रुपीज का है? क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? हम्म? आपको लगता है आप लोग का वैल्यू जो है 110 रुपीज है? नहीं ना? तो हमारी असली पहचान क्या है फिर? देखिए, इनका नाम क्या है? कौन लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? तो सबको पता होगा। यस। सो जब इनकी जो है डेथ हो गई, लगभग आई थिंक 3-4 साल पहले इनकी जो डेथ हो गई, तो मृत्यु के बाद देखा जाए तो सेम केमिकल था, तो बट उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई, है ना, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई विश नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, और कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि नहीं? बट केमिकल्स तो वही है कि नहीं? केमिकल्स तो वही है। सही कह रहा हूं मैं? तो इसलिए एक बहुत सुंदर जो है, अ, कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, गतवती वायु देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये।
as long as there is breath in the body, so long the people in the household ask about one's welfare. Once the breath lives on the destruction of the body, the dependents dread that very same body. कहते हैं कि जो है शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब तक जो है सांस है तब तक जो है लोग आपको पूछते रहेंगे, है कि नहीं? और जब जो है सांस बंद हो जाएगी तब क्या करेंगे? उस शरीर जो है उनको लगेगा कि इस शरीर को कितना जल्दी जो है ना इसको जो है अंतिम क्रिया किया जाए, है ना? ऐसे बैंगलोर में एक केस हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, है ना, कपल थे। तो हस्बैंड जो है अचानक जो है रात को शरीर छोड़ दिया, और वाइफ और सुबह तक उसको अंतिम क्रिया करना था, लेकिन वो वाइफ जो है रह नहीं पाई। उस तुरंत जो है फोन की, है ना, कहती कि नहीं मैं तो नहीं रह सकती, है ना, इनके साथ मैं नहीं रह सकती। मतलब जबकि वही हस्बैंड वाइफ कितने दिन तक रहे होंगे उसी कमरे में। लेकिन वाइफ ने जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन किया और फिर जो है बॉडी को तुरंत लेकर गए, है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ना। तो इसी को कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब यही था, कि जो है अ, जब जब तक सांस है, जब तक वो आत्मा है, तब तक जो है आपके अंदर चेतना है ना। और लोग भी आपको, है ना, आपको पूछेंगे। बट जैसे ही खत्म हो गया तब जो है क्या किया जाएगा? शरीर को तुरंत क्या कर दिया जाता है? डिकम्पोज करने के लिए चल जाते हैं लोग, है ना, है कि नहीं? तो देखा जाए अ, कि ये जो जिस प्रकार आत्मा जो है शरीर को क्या देता है? एक शेप देता है ना। जिस प्रकार आप देखेंगे, जैसे ठंड में जो है आप ग्लोव्स पहनते होंगे ना, तो ग्लोव्स जो है आप जैसे पहनते हैं तब उसका एक साइज रहता है ना, एक शेप रहता है। बट वही ग्लोव्स को आप अगर निकाल के फेंक देंगे तो उसका कोई शेप नहीं रहेगा, है कि नहीं? या मैं ये जो एक मैंने ये कुर्ता पहना है ना, कुर्ता पहना हूं तो क्या है? एक शेप है। बट वही कुर्ता को मैं जब निकाल देता हूं तो उसका कोई नहीं रहता है, एकदम छोटा सा ऐसे एक, एकदम छोटा सा हो जाता है ना, कोई साइज शेप कुछ नहीं रहता है ना। तो इसी प्रकार आत्मा क्या करती है कि इस शरीर को जो है एक शेप देती है ना? और जैसे ही आत्मा चली जाती है तो शरीर जो है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। और उसके बाद जो है कोई सम्मान असम्मान, है ना, कुछ मैटर नहीं करता है ना। सम्मान असम्मान तब मैटर करता है जब तक जो है क्या है? जब तक शरीर में आत्मा है कि नहीं? सो नाउ विल प्रोसीड। तो वही शरीर है लेकिन आत्मा चली गई, है ना। तो इसी को भगवान कहते हैं भगवद गीता में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, है ना। आत्मा का कोई जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन किसका जन्म मृत्यु है? शरीर का। तो इस प्रकार हम देखेंगे शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। शरीर जो है इनएक्टिव है, आत्मा एक्टिव है ना। शरीर में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो सचेतन है, कॉन्शियस है। शरीर जो है रिचेंजेबल है ना, परिवर्तन होता है शरीर में, है। आप मतलब 7 इयर्स में, 7 साल में एक आपका जो शरीर है वो पूरा चेंज हो जाता है ना। जैसे आपके अंदर जो है ना टिश्यूज है, कुछ टिश्यूज नए बनते हैं और कुछ जो ओल्ड टिश्यूज जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार 7 इयर्स में कहते हैं कि 7 इयर्स में आपका जो बॉडी है वो टोटली न्यू हो जाता है ना। तो इस प्रकार शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है। शरीर जो है वो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा क्या है? इटरनल है, शाश्वत है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा जो है उसकी मृत्यु नहीं होती है कि नहीं?
तो आप शरीर नहीं है, बल्कि जो आप आईने में देख रहे हैं आप आत्मा है। और आप कौन है? शरीर रूपी कार के असली चालक, है ना। सो भौतिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि हम जड़ पदार्थ से बने शरीर है। हम एक केमिकल बंडल से ज्यादा कुछ नहीं है। और मृत्यु के समय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन, है ना, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, स्पिरिचुअल विजन है, एक तो मटेरियल विजन और एक स्पिरिचुअल विजन। तो स्पिरिचुअल विजन में क्या है कि हम मांस और हड्डियों के भौतिक शरीर नहीं है, हम भौतिक शरीर में बंधी आत्मा है ना। जैसे देख रहे हैं सब में क्या है? आत्मा है कि नहीं? और जब भौतिक शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, हमारा मृत्यु नहीं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस प्रकार पंछी पिंजरे में कैद होता है, उसी प्रकार आत्मा पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बने शरीर में फंस जाती है ना। तो आत्मा जो है ये शरीर रूपी जो पांच तत्व है, उस पांच तत्वों में शरीर जो है फंसी हुई है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक लेडी है, शी वॉज ए रिच लेडी, एंड उन्होंने एक तोता रखी थी। और वो तोता जो है को एक सोने का जो है केज खरीदी थी और सोने के पिंजरे में रखती थी। और उस सोने के पिंजरे को जो है पॉलिश करती थी, लेकिन तोता को जो है वो खाना नहीं देती थी, है कि नहीं। तो तोता जी पाएगा ज्यादा दिन तक? तो उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये जो शरीर है, हम इस शरीर का तो पोषण कर रहे हैं, बहुत देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर में जो तोता मतलब जो आत्मा है, उस आत्मा को हम क्या कर नहीं कर रहे हैं? पोषण नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट इज टू फीड ऑल्सो सोल। वी आर फीडिंग आवर बॉडी बट नॉट फीडिंग आवर सोल। बट सोल का जो फीड है, फूड है, वो अलग है ना। जिस प्रकार, है ना, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे मेरे पास एक व्हीकल है ना। तो व्हीकल है, तो व्हीकल का जो फूड है वो क्या है? पेट्रोल है, पानी है, उसका जो जो चक्का है ना, वो चक्का में हवा देना पड़ता है ना। तो ये उसका फूड है। बट जो मेरे पास जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर को भी मैं कहूंगा कि देखो, गाड़ी जो खा रहा है तुम्हें भी वही खाना है। तुम्हें भी जो है पेट्रोल खाना है, तुम्हें भी जो है जो है हवा खाना है, तुम्हें भी जो है बस पानी लेना है। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि गाड़ी का जो फूड है और ड्राइवर का जो फूड है वो अलग है ना। उसी प्रकार हमारा जो शरीर का फूड है, क्या है? शरीर का फूड है रोटी चावल दाल, जो भी है आप लोग खाते हैं। और है कि नहीं। लेकिन जो आत्मा का फूड क्या है? आत्मा का फूड है दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, है ना, डिवाइन एसोसिएशन, है ना, चैंटिंग ऑफ होली नेम, है, और रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो ये सब क्या है? दिस इज द फूड फॉर सोल, है ना। ओके। सो नाउ हम ये तो पढ़ लिए कि जो है हम शरीर जड़ पदार्थ नहीं है, हम आत्मा है। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रभु जी, आप आत्मा आत्मा तो कह रहे हैं, बट क्या ये आत्मा का कोई प्रमाण है क्या? हैं? क्या हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको पता चला है कि आत्मा है शरीर में है करके, है कि नहीं? तो आप लोग जानना चाहेंगे? यस और नो? आप लोग जानना चाहेंगे? कौन कौन जानना चाहेगा? ओके, आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, तो ये चार चीज हम देखेंगे कि आत्मा का
जो है अस्तित्व के प्रमाण। एक तो एक व्यवहारिक ज्ञान है, दूसरा क्या है कॉन्शियसनेस है, और तीसरा क्या है कुछ मेडिकल हिस्ट्री है जिसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट बॉडी एक्सपीरियंस। और और एक जो है वो है थ्योरी है जिसको बोलते हैं री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो व्यावहारिक ज्ञान है ना, व्यावहारिक ज्ञान में क्या है कि जो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं कि वो चला गया या वो चली गई, है ना। तो कौन चला गया? शरीर तो अभी भी वही है, तो इसका मतलब क्या है, आत्मा चली गई, है कि नहीं, है ना। दरअसल कौन, आत्मा चली गई, है ना। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं आ, कोई कैमरा, है ना, अगर हम चेतना के बारे में चर्चा करेंगे, कोई कैमरा अगर हम रखते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हम रखे हैं, तो कैमरा जो है क्या कहेगा, कुछ रेड रेड सा कुछ है वो फोटो खींचेगा ना। बट अगर वो वहीं पे एक व्यक्ति होगा तो वो जानेगा कि नहीं अभी जो है सनराइज हुआ है, इसीलिए, है ना, इसलिए रेडिश रेडिश है कि नहीं। जैसे कहते हैं कि देखो जब हम अ, कोई चीज को देखते हैं, कोई एक लिविंग पर्सन किसी चीज को देखता है, तो उसमें तीन चीज होता है। एक होता है परसेप्शन, एक होता है मेंटल एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज पर्पसफुल एक्शन। क्या कहा मैंने? फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेकंड वन इज मेंटल एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज पर्पसफुल एक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कोई एक सांप को देखा, है ना, तो सांप को देखे तो क्या होगा, आपके अंदर परसेप्शन आएगा। परसेप्शन में क्या है कि सांप जो है बहुत डेंजरस है ना, सांप बहुत डेंजरस है। अब क्या होगा, मेंटल एक्टिविटी, तो मेंटल एक्टिविटी में तो क्या करना चाहिए मुझे, है ना, क्या करना चाहिए, तो तुरंत जो है वो प्रोग्रामिंग चलेगा, वो प्रोग्रामिंग चलेगा कि इसको जो है मुझे मारना चाहिए या मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो ये क्या हुआ, मेंटल एक्टिविटी। और पर्पसफुल एक्शन, पर्पसफुल एक्शन मतलब क्या हुआ, तो फिर आप भागेंगे या तो आप जो है एक स्टिक लेके मारेंगे। सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? यस और नो? है ना। तो वही चीज को हम दूसरे एंगल से लेते हैं, है ना। आप में से जो है किस किस को कौन कौन सा स्वीट पसंद है, लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में, क्विक। कौन सा स्वीट पसंद है आपको? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, ओके, जो भी है। तो क्या हुआ कि आप जो आप किसी के घर में गए हुए हैं, है ना, और गए हुए हैं और वो जो है आपके सामने वही रख दिया जो भी आपके फेवरेट है, में भी गुलाब जामुन है या काजू कतली है या मोतीचूर के लड्डू भी कोई लिख रहा है है कि नहीं, वो आपके पास आ गया, है ना। तो आ गया तो क्या होगा, आपके अंदर, है ना, परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब क्या है कि मैंने पहले भी खाया था और बहुत, है ना, बहुत अच्छा था, है ना। और मेंटल एक्टिविटी क्या है कि मुझे इसको खाना चाहिए। और पर्पसफुल एक्शन में क्या होगा कि सीधा आप हाथ लेंगे और लेके जो है अपने मुंह में डाल देंगे, है ना। तो तीन चीज हो रहा है। बट ये तीन चीज जो है मशीन में, कोई मशीन ले लीजिए या कोई रोबोट ले लीजिए, तो उसमें क्या है, उसमें ये चीज मिसिंग हो, है ना। या मैं जैसे अभी बता रहा था कैमरा है ना, उसमें ये चीज नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है ना। तो यही है कि एक लिविंग पर्सन और एक, है ना, एक, है ना, मशीन में ये अंतर है कि नहीं, है कि नहीं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि कभी क्या होता है ना, कभी अगर, कभी अगर ऐसा हुआ कि
जो है आपके फ्रेंड जो है उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी थी, और वो मर्सिडीज चला रहा था, है ना। और मर्सिडीज चला रहा था, तो क्या हुआ कि जो है मर्सिडीज जो है एक्सीडेंट हो गया ना। तो मर्सिडीज एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? मर्सिडीज को गैरेज लेकर जाएंगे या फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? कोई कैंसर? हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना, ये तो दिस इज कॉमन सेंस है। जबकि अगर देखा जाए, अगर हम केमिकल की बात करें, तो वैसे तो जो है फ्रेंड का जो जो शरीर का जो कीमत है वो 110 रुपए का है, और मर्सिडीज जो है हो सकता है कि 50 लाख का होगा, है ना, है कि नहीं? बट क्या है कि जो आत्मा है ना, आत्मा जब शरीर में है, तो दैट इज मोर वैल्यूएबल देन ए मर्सिडीज कार, है कि नहीं? तो यही मैं कह रहा था कि एक मशीन और एक, है ना, चेतन व्यक्ति, है ना, जिसके अंदर आत्मा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है ना। ओके। तो ऐसे ही और कुछ मेडिकल हिस्ट्री है ना। मेडिकल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, है ना। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है कि कई बार ना, कि व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ही इज नो मोर, वो चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि कभी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, या आधा घंटे के बाद, या कुछ समय के बाद जो है वो व्यक्ति जो है दोबारा जी जाता है ना। और इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना। तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जब उसको कहा गया कि ये चला गया है और उसके बाद फिर वापस आता है, और ऐसे मतलब एक आध केस नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। हम यही पे विष्णुपाद में 3-4 साल पहले हुआ था, हम लोग, वो व्यक्ति मर गया, उसको लेकर आए हैं, शमशान में रखे हैं, है ना, उसको, है ना, अंतिम क्रिया करेंगे, और कुछ समय के बाद देखे कि उसका बॉडी जो है हिल रहा है ना। तो इससे कई सारे केसेस होते हैं ना। तो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और उसी प्रकार का होता है आउट बॉडी एक्सपीरियंस। आउट बॉडी एक्सपीरियंस में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है ऑपरेट किया जा रहा है ना। और वो व्यक्ति जो है, जब ऑपरेट किया जा रहा है, उसको एनेस्थेसिया दे दिया गया, वो सो रहा है, और उसको ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। और ऐसे कई सारे केसेस है। और बाद में वो बोलता है कि ये, इसने सीजर पकड़ा था, इसने मेरा हाथ पकड़ा था, है ना, ये सुई लगा रहा था, है ना। तो ये सब जो है कई सारे केसेस है जिसको हम अभी देखेंगे। हाँ, क्या है, इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट बॉडी एक्सपीरियंस। और, है ना, इसमें कई सारे किताब भी लिखे गए हैं। आप देखिए, इतने सारे किताब लिखे गए हैं ना। इतने सारे किताब है ना। उसी प्रकार इयान स्टीवेंसन है, जो कि साइकियाट्रिस्ट के प्रोफेसर थे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ये जो री इनकारनेशन के ऊपर 3000 केसेस उनको मिला, और उन्होंने भी कई सारे किताब लिखे हैं ना। ये देखिए कितने सारे किताब लिखा गया है री इनकारनेशन के ऊपर, जबकि जो क्रिश्चियन जो है बाइबल में री इनकारनेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है ना। बट बीइंग ए क्रिश्चियन, इयान स्टीवेंसन, ही फाउंड सो मेनी केसेस ऑफ री इनकारनेशन, है ना। तो इसमें वो कहते हैं कि एक होता है फोबिया, है ना। फोबिया मतलब एक काइंड ऑफ फियर, है ना। तो कह रहे हैं कि फोबिया मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु के तरीके के संबंधित होते हैं जिसके जीवन को याद किया जा रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि पिछले जीवन में डूबने से मरा होगा तो उसको पानी का भय होगा। उसी प्रकार अगर उसको जो है शूट किया गया है, तो वो जो है आग्नेयास्त्रों की भय होगा, है ना। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पे एक वीडियो में दिखाऊंगा, और थोड़ा सा कम समय के लिए, क्योंकि टाइम हमारा लेट हो रहा है। ये जो है एक केस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पायलट मर गया था, और वो री इनकारनेट हुआ एक छोटा सा बच्चा बच्चा के रूप में। और वो बच्चा जो है वो बचपन से
हमेशा जो है वो फ्लाइट फ्लाइट के प्रति बहुत अट्रैक्टेड था। वीडियो गेम खेलेगा तो फ्लाइट वाला गेम खेलेगा। तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा इसको, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can beat the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा समय जा रहा है। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि वो जो बच्चा जो है, वो बच्चा पूरा बोला कि मैं पायलट था और मुझे जो है जापानीज ने मार दिया था। और फिर उसने जो बताया कि कहाँ पे मैं जो है मेरा जो शिप है उसका नाम क्या था। तो ये लोग जाके उसको चेक किए, और चेक किए तो उस पूरा एकदम फैक्ट मिला। और उसमें उसने अपने सिस्टर का भी नाम बताया। तो लोग जाके जो है उसके सिस्टर से भी मिले। जो जो रिकॉर्ड उसने बताया, और उस रिकॉर्ड को भी जाके देखा गया कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना। तो वो वीडियो था। तो इसी प्रकार एक और केस है, इसके बारे में जो है वो यान स्टीवनसन लिखते हैं कि शुक्ला, एक छोटी सी बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी। और शुक्ला जो है वो उसने कहा कि मैं तो पिछले जन्म में वहां थी। तो उसे ऐसे करके जो उसके घर वालों को वो लेकर गई वहां पे, उस गांव में लेकर गई, है ना। भाटपारा लिखा हुआ है, भाटपारा गांव लेकर गई। और जाके जो है वहां पे उसने अपने ससुर को, अपने जो है सास, देवर, पति, बेटी, है ना, उसको समझा। और अपना जो उसका जो देवर था, उस देवर का भी जो है उसने क्या किया, उसका उपनाम, और से कॉलिंग नेम होता है, कॉलिंग नेम और उसका नाम भी बताया, है ना। ओके, सो ये हो गया। तो ये तो आप कन्विंस हो गए होंगे। तो अब देखेंगे हम जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में अंतर क्या है। तो ये तो क्लियर हो ही गया आपको। जैसे है ना, जैसे हमने कहा कि जैसे कहीं पे जैसे अगर मूवी चल रहा है ना, बट कैमरा जो है क्या करेगा, कैमरा जस्ट एक फोटो लेगा, एक वीडियो लेगा, है ना। बट वो जो इमोशन है, वो इमोशन को वो कैच नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार जो कैमरा में कोई फीलिंग्स नहीं होता है ना। बट जो एक मनुष्य होता है उसमें फीलिंग्स होता है। कैमरा में जो है कोई फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है ना, कोई, है ना, जो है ये एक्टिविटी नहीं है ना। तो इसी प्रकार जो है दोनों में अंतर होता है ना। प्रभुपाद जी को किसी ने, एक रिपोर्टर ने पूछा कि जब ये शरीर तो जो है एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन जैसा है, तो हमें फिर आत्मा की क्यों चिंता करनी है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उसको उनको जो है आंसर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, जैसे कोई ऐसा होता है क्या, मेल कार एंड फीमेल कार दोनों मिल गए और एक चाइल्ड कार जो है पैदा कर दी, ऐसा होता है क्या। और ऐसा होता है क्या कि जो है कार जो है वो बढ़ रहा है ना, धीरे 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 बढ़ रहा है, ऐसा होता है क्या। तो ऐसा नहीं होता है। जबकि हमारा जो शरीर में ऐसा होता है ना। शरीर में जो है 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, है ना। और क्या क्या 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं कि शरीर जो है पहले जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बाद फिर एक समय में मेंटेन हो जाता है ना। और उसके बाद फिर बाय प्रोडक्ट, है ना, एज ए चाइल्ड वगैरह आते हैं, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे फिर, है ना, डिटेरियोरेट होता है, और उसके बाद फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं शरीर में, जबकि मशीन में इस प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है ना। फिर हम देखेंगे कि माइंड, व्हाट इज द
टेक्निक ऑफ माइंड है ना, हम मन का तंत्र देखेंगे। तो देखिए, हमारे जो शरीर है, इस शरीर में आप जो ऊपर जो शरीर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, है ना। ग्रॉस बॉडी किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। और इसके अंदर होता है कि सटल बॉडी। सटल बॉडी किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो से। और उसके अंदर होता है आत्मा। तो आत्मा, आत्मा के ऊपर सटल बॉडी, और सटल बॉडी के ऊपर, है ना, ग्रॉस बॉडी, है ना। तो इसी प्रकार ये जो है इस प्रकार जो है आत्मा रहता है ना। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे हम जो है एक बनियान पहनते हैं, और बनियान के ऊपर हम जो है एक शर्ट पहनते हैं, और शर्ट के ऊपर एक कोट पहनते हैं ना। तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं जो कोट है वो ग्रॉस बॉडी हो गया, और जो शर्ट है वो हो गया आपको सटल बॉडी। जो बनियान है उसको कह सकते हैं क्या? सूक्ष्म शरीर, सॉरी, आत्मा, है ना, सोल। तो ये जो जो हमारे जो 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियां, आप लोग सुने होंगे, आप लोगों से आई थिंक सबको तो पता होगा 5 इंद्रियां, यस और नो। तो 5 इंद्रियां जैसे कान, नेत्र, नाक, जीवा और त्वचा। और ये 5 इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन, है ना, माइंड है। और माइंड में क्या रहता है? विचारों का भंडार, और अनफुलफिल्ड विशेष एंड पास्ट एक्सपीरियंस, है ना, ये रहता है मन में। और मन के ऊपर कौन होता है? बुद्धि, है ना। बुद्धि मतलब जो कि डिसीजन मेकर बोला रहता है ना। इस प्रकार आप कह सकते हैं इसको कि जो है जैसे बच्चे होते हैं ना, तो हम इंद्रियों को जो है बच्चों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं ना। और बच्चों का कुछ डिमांड होता है, तो बच्चे जो है डिमांड किसके पास करते हैं? माँ के पास करते हैं, है ना। तो माँ के पास करते हैं, और माँ जो है जाके क्या कहती है किसको? पिताजी के पास कहती है जाके, है ना। तो उसी प्रकार जो इंद्रियां हैं वो पहला डिमांड करते हैं किसके पास? मन के पास, है ना। और मन जो है उसको सैंक्शन कराने के लिए वो जाती है किसके पास? इंटेलिजेंस के पास जाता है ना। तो चैरियट ऑफ द बॉडी, शरीर का रूपी रथ, है ना। जैसे ये घोड़े हैं, 5 घोड़े जो है 5 इंद्रियां हैं। ये जो लगाम है वो क्या है? मन है। और ये जो ड्राइवर है, जो, या आप उसको बोल सकते हैं चैरियटियर, है ना, सारथी जो है कौन? बुद्धि है। और हम कौन है? आत्मा है ना। जो भी जो योद्धा है वो जो है वो आत्मा है। और इसी प्रकार भगवान बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं भगवद गीता में, बंधुरात्मा मनस्तस्य यनात्मया मनाजितः अनात्म मनस्तु शत्रुत्वे वर्तत आत्मैव शत्रुवत्। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे कि देखो, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन जो है क्या है? सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है ना। तो मन अगर अनियंत्रित है वो आपका दुश्मन है, और अगर नियंत्रित है वो आपका अच्छा दोस्त है ना। जैसे चाकू के साथ किया जाता है ना, चाकू, है ना, चाकू को हम सब्जी कटिंग में भी लगाते हैं। डॉक्टर्स ऑल्सो दे यूज फॉर ऑपरेटिंग, है ना, किसी का जान बचाने में यूज करते हैं। बट वही चाकू जब क्रिमिनल के हाथ में होता है वो किसी का जान ले लेता है ना। तो इसी प्रकार हम अपने मन में जो रखेंगे वही निकलेगा, है ना। अगर हम मन में गार्बेज रखेंगे तो क्या निकलेगा? गार्बेज निकलेगा। और अगर हम गुड गुड इन गुड आउट, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट एंड गुड इन गुड आउट, अगर अच्छा चीज रखेंगे तो अच्छा चीज है हमारे एक्टिविटीज में दिखाई देते, है ना। तो कैसे अच्छा चीज है कि हम कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, है ना, हम कैसे मूवी देख रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी आर लिसनिंग, हियरिंग, एंड, है ना। और हमारे जो दोस्त है वो किस टाइप ऑफ दोस्त है हमारे पास, है ना। जैसे जैसे एक डायलॉग है ना, कि जैसे कोई कह सकता है कि मतलब मन, एक इंजीनियर जो है वो सिगरेट लेता है, तो उसको लगता है कि मन कहता है कि अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे कम से कम पता होना चाहिए कि सिगरेट को कैसे पकड़ा जाए। और
ये जो है दैट विल मेक मी कूल, है ना। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि कहती है नहीं, ये तो बहुत ही बैड हैबिट है, और आपके माता पिता जो है इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, एंड यू विल बी एडिक्टेड, है कि नहीं। तो गलत रास्ते में मत फंसो। तो इसी प्रकार जो है मन और बुद्धि के बीच में डायलॉग होता है। तो बुद्धि को हमेशा जिताना चाहिए। और बुद्धि को हम कैसे जिता सकते हैं? जब हम, है ना, हायर एसोसिएशन लेंगे, है ना, और अच्छा अच्छा किताब पढ़ेंगे, तब जाके हम बुद्धि को स्ट्रांग बना सकते हैं, ना, है कि नहीं। नहीं तो फिर हमारा मन अगर जीत गया तो फिर हम गलत आदत में पड़ जाते हैं। तो लास्ट में हम देखते हैं कि देखो हमें जो है मतलब कैसे हम बंट जाते हैं, हिंदू मुसलमान श्वेत, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक एंड रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड अनएडुकेटेड, है ना, या ब्यूटीफुल एंड अगली, है ना। तो ये है, शारीरिक चेतना है ना। लेकिन आध्यात्मिक चेतना में अगर हम रहेंगे, क्योंकि हम तो शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे इस्कॉन मूवमेंट में सब काले गोरे कोई भी कंट्री के लोग जो है, सब लोग एक साथ में आ रहे हैं और जो है महामंत्र का जप कर रहे हैं, है ना, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक एक उच्च उद्देश्य के लिए एक साथ आ रहे हैं, और ये जानते हुए कि हम ये स्थूल शरीर नहीं है, अपितु हम दिव्य आत्माएं हैं, है ना, जैसे। तो अब जो है हम पहुंच गए हैं। अब मैं ना एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ आप लोगों को, सो यू कैन जस्ट फिल आउट दिस। ये फीडबैक फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। दिस इज कंपलसरी, क्योंकि इससे मैं अटेंडेंस लूंगा, और इसी के बिहाफ पे मैं जो है आई इशू द सर्टिफिकेट्स। ओके, हम लास्ट में पहुंच गए हैं। सो तो हमने चर्चा किया कि कैसे है जो है हमें माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, ना। जैसे माइंड को कंट्रोल करना मतलब जैसे अगर हम पानी, है ना, पानी को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, बाढ़ आ जाता है ना। और वही पानी को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो हमें बिजली तक भी देता है कि नहीं। तो इसलिए जो है माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, जिस प्रकार आप देखेंगे कि पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ पौधा होता है जैसे मतलब गार्डन में होते हैं, उसको अगर प्रॉपरली ट्रिम किया जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है ना। बट अगर ट्रिम नहीं किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल है ना, पार्क नहीं है तो जंगल है ना। तो इसी प्रकार जो है माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, और हमारा जो इंटेलिजेंस है उस है ना इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना चाहिए। एंड इन कंक्लूजन, जस्ट कंक्लूजन है कि मैं जस्ट रिकैप कर देता हूँ। तो इसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किए कि क्या हम पदार्थ है या आत्मा है। इसमें हम लोगों ने चर्चा की है कि, है ना, हमारा शरीर का कीमत तो 110 रुपये है, लेकिन है ना हमारा वैल्यू 110 रुपये का नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मर्सिडीज एंड योर फ्रेंड, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाना, ना कि मर्सिडीज को लेकर जाना। फिर हमने देखे भौतिक दृष्टिकोण से हम शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे अंदर आत्मा है। और आत्मा जो है वो शारीरिक जो कार है उसका, है ना, जो है इनविजिबल ड्राइवर, है ना। और आत्मा के फिर अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण भी हमने उन्हें देखा कि जैसे कोई अगर मृत्यु हो जाती है किसी का, तो हम कहते हैं कि वो चला गया, वो चली गई है। तो कौन चला गया? तो आत्मा चली गई, है ना। फिर हमने, है ना, वो कैमरा एंड जीवित व्यक्ति के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें हमने 3 चीज बताया था, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी एंड पर्पसफुल एक्शन, जो कि जीवित व्यक्ति में करता है लेकिन जो कैमरा या मशीन नहीं करता है। और फिर हमने मेडिकल हिस्ट्री भी कहा, जैसे में नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में हमने चर्चा किया। और लास्ट में फिर हमने री इनकारनेशन के बारे में चर्चा किए।
और फिर हम लोगों ने जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में अंतर देखे कि कैसे, है ना, जो जीवित व्यक्ति में फीलिंग्स है, इमोशन है ना, बट वो चीज मशीन में नहीं है ना। और जैसे कैमरा एंड जज, है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा किए। और जीवित शरीर और रोबोट के बीच में देखे क्या क्या अंतर है। मनुष्य जो शरीर है ना, उसमें जन्म, मृत्यु, वृद्धि, संरक्षण, प्रजनन, क्षय और विनाश, 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन ना बॉडी, है ना, जिसमें सोल है, बट जो कि मशीन में नहीं होता है ना। फिर हमने जो माइंड का जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने देखे कि कैसे हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर आत्मा है। और फिर मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, जो चैरियट ऑफ द बॉडी, हम चर्चा किए। और फिर जो है कंट्रोल्ड माइंड एंड अनकंट्रोल्ड माइंड, है ना, गुड इन गुड आउट या गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसके बारे में चर्चा की। और लास्ट में हमने चर्चा की कि अगर आप आत्मा के बारे में जानते हैं तो उसका व्यावहारिक लाभ क्या होता है, कि आप जो है सोशल सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं ना, क्योंकि आप जब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ ना। और इसी प्रकार आप जो है जो है ऊपर उठ सकते हैं ना, अपना कॉन्शियसनेस को ऊपर उठ सकते हैं जब आप आत्मा के बारे में जानते हैं। और जीवन में एक है ना पॉजिटिव है ना जो है विजन लेकर आ सकते हैं, है ना। और जो संसाधन है उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं। एंड है ना वैश्विक बंधुत्व, है ना, ये भी कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं ना। ओके, हरे कृष्णा। आपके मंगलमय जीवन की कामना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई होप यू हैव filled up this फीडबैक फॉर्म। सभी भर दीजिएगा, जिससे जो है ना हम आपका ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड। और आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर सेशन के दौरान किसी भी चीज आपको समझ में नहीं आया होगा तो। सभी लोगों ने फॉर्म भर दिए, यस और नो? कोई क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो है उत्तर। पता होते हुए भी ये काम गलत है, फिर भी हम काम हो जाता है। हाँ, क्योंकि क्या है ना, इसको भगवान ये सेम क्वेश्चन अर्जुन जो है पूछे थे भगवान जी को। तो भगवान ने कहा काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव है। तो ये क्यों होता है? रजोगुण के प्रभाव से होता है ना। तो इसलिए हमें रजोगुण से क्या होना पड़ेगा, सत्वगुण तक आना पड़ेगा। तो जितना जितना हम सत्वगुण में आएंगे, सत्वगुण में आएंगे, तो फिर वो जो जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम से धीरे 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 हम फ्री हो जाएंगे, है ना। तो सत्वगुण में आने के लिए, जैसे तुमने कहा कि भगवान का नाम उच्चारण करना है, सेंटली लोगों का एसोसिएशन लेना है ना। तो इस प्रकार आप, है ना, रजोगुण से सत्वगुण में आ सकते हैं। रोज ओवर थिंक करना कम कैसे करे? यस ओवर थिंक करना कैसे कम करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जो है प्रॉपर प्लान बना सकते हैं। और बेसिकली ना आप नोट डाउन कीजिए, है ना, नोट डाउन कीजिए जो भी आ रहा है। एक्चुअली ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि जो माइंड है ना, वो माइंड आपको बार बार कह रहा है कि अरे देखो, ये काम है, वो काम है, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कि कोई कोई चीज एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए गए हैं, है ना, आप फिजिक्स पढ़ने के लिए गए, फिजिक्स पढ़ने के लिए गए, तो माइंड कहेगा अरे तो केमिस्ट्री में इतना बाकी है, और तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो बैठ के, है कि नहीं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी माइंड में आ रहा है आप क्या कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, है ना। तो नोट डाउन करने से क्या होता है
कि जो जो माइंड है ना वो शांत हो जाता है ना। माइंड इज जस्ट लाइक ए बेबी, है ना। माइंड जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ना, वो कहता रहता है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, ऐसा कहता है ना। तो पापा जो है उसको कहते हैं ठीक है, ठीक है बेटा, देखो मैं लिख दिया, अब जो है ना मैं जो नेक्स्ट टाइम जाऊंगा मार्केट से ले आऊंगा। तो जो बच्चा जो है शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है क्या होता है कि माइंड इस प्रकार करता है ना। तो इसलिए आप क्या कीजिए, उसको लिख दीजिए, है ना। जो भी आपको आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिख दीजिए, है ना। और लिख के उसको प्रॉपर स्केड्यूल बना दीजिए, ठीक है मैंने ये लिख दिया, और आपको जो है आपका ये काम को जो है मैं करूंगा या करूंगी, है ना। तो इस प्रकार करके जो है आप है ना ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? आई हैव a doubt how to make yourself emotionally strong. हाँ, इमोशनली स्ट्रांग जो है उसके लिए आपको ना मतलब अच्छे अच्छा किताब पढ़ना पड़ेगा, और आपका कोई एक ना बहुत बढ़िया फ्रेंड होना चाहिए, है ना। जिस फ्रेंड के साथ आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है, फिर आप जो है इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं ना। एक तो किताब पढ़ना है, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना है, और दूसरा क्या है, एक जो है बढ़िया फ्रेंड होना चाहिए आपको, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी, जो काम करना होता है फिर भी इग्नोर करके, जो काम जो बिल्कुल वेस्ट टाइम होता है, ये कैसे ठीक करे, समझ नहीं पा रहा हूँ। तेजस्वी कुमार पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। वो थोड़ा मतलब इमोशनली खुद को कैसे मतलब स्ट्रांग करें। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक फ्रेंड होना चाहिए, बट अगर फ्रेंड होता है तो उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो अगर उससे कुछ होता है तो उसका प्रभाव हम पे होता है, तो उसको हम्म कैसे डील करें। फ्रेंड मतलब वो तो ठीक है ना। फ्रेंड मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ना मतलब ऐसा अपने फ्रेंड है ना, नॉट ऑपोजिट सेक्स, है ना। ऑपोजिट सेक्स होगा तो नो फिर तो नो, है ना। नहीं वैसा अगर कुछ नहीं है। हाँ, हाँ अगर अपने फ्रेंड है तो ठीक है। आप उसका इमोशनल को सुन रहे हैं, वो आपके इमोशन को सुन रहे हैं ना, तो इट्स ओके, है ना। और फिर जो है आप, जैसे मैं कहा ना कि स्पिरिचुअल किताब पढ़ेंगे, है ना। जैसे अर्जुन ऑल्सो क्या है कि, है ना, बहुत ही इमोशनली वीक थे, है ना, जब उनको उन्होंने देखा, है ना। और लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सुना, आत्मा का ज्ञान के बारे में सुना, देन ही वॉज स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, है ना। और फिर उन्होंने युद्ध किया, है ना। तो हम इस सब टॉपिक लेंगे धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ये सब टॉपिक लेंगे, है ना। डोंट वरी। और आप जो है फॉर्म भर दीजिए, लिखिए, फिर मैं धीरे धीरे आप लोगों को, है ना, इसके ऊपर करूंगा, इसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, मैं यहीं पे विराम देता हूँ, बिकॉज लेट हो गया है, 20 मिनट्स आई एम लेट, आई एम सॉरी। हरे कृष्णा। जगत कुछ लोगों की जाए। सभी फॉर्म भर दिए ना? ओके, हरे बोल।